اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کا ہماری اس ویڈیو کے لیے ٹائم نکالنے کا شکریہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اعتکاف کے متعلق۔ اعتکاف کیونکہ آج 19واں روزہ ہے اور کل 20واں روزہ ہے۔ 20ویں روزے کو اور 19 کی جب شام ہوتی ہے، شام ہونے سے پہلے یعنی افطاری کے وقت تمام مسلمان اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا یا ٹھہرنا یا ٹھہرانا۔ تو اصطلاح شرع میں یعنی شرعی طور پہ اصطلاح شرعی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا داری سے الگ کر کے کچھ دنوں کے لیے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی عبادت کی طرف مخصوص کر دینا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دل سے عبادت کرنا، مسجد میں بیٹھ دینا، اپنے آپ کو مسجد کے اندر مخصوص کر لینا۔ تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلی قسم ہے اعتکاف سنت علی الکفایہ، دوسری قسم ہے اعتکاف نفلی اعتکاف، تیسری قسم ہے اعتکاف واجب۔ ان تینوں قسموں کی شرطیں الگ الگ ہیں۔ پہلے ہم بتاتے ہیں سنت علی الکفایہ کیا ہوتا ہے۔ سنت علی الکفایہ پہلے بھی ہم نے اکثر ویڈیوز میں بتایا ہے۔ سنت علی الکفایہ وہ ہوتا ہے یعنی ایک بستی، گاؤں یا شہر میں سے کوئی ایک فرد بھی کوئی یہ کام کر لے، یعنی آج اعتکاف کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ایک فرد بھی اعتکاف بیٹھ جائے گا پورے گاؤں میں سے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی ایک شخص بھی نہ بیٹھا اعتکاف پورے گاؤں میں سے یا شہر میں سے تو سب کا مواخذہ کیا جائے گا، سارے ہی گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ سنت علی الموقدہ کی بات ہو رہی ہے کہ سنت علی الموقدہ وہ اعتکاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں فرمایا۔ پہلے 2 عشروں میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سنت اور مستحب یہ ہے کہ آخری عشرے میں کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن اعتکاف کیا اس کو 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف ہوتا ہے یعنی ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم نیت کر لی، نویت سنت الاعتکاف، یعنی اردو میں بھی کر سکتے ہیں، دل میں بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہم جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے یا کچھ عبادت کریں گے، کچھ بھی کریں گے، ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اسے اعتکاف مستحب بھی کہتے ہیں۔ تو نفلی اعتکاف کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو نفلی اعتکاف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا راستہ بنا دیتا ہے کہ دوزخ اس سے اتنی دور ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے، تیسری قسم ہے اعتکاف واجب، یعنی واجب جو ہوتا ہے اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے یعنی اگر ہم کوئی منت مانگ لیتے ہیں، یعنی کوئی کسی چیز کی منت مانگتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اگر ہمارا ہو گیا، یا کوئی بھی اچھے کام کی منت مانگتے ہیں، اگر یہ کام ہمارا ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا کچھ دنوں کے لیے، تو یہ ہوتا ہے اعتکاف واجب۔ واجب کا ہوتا ہے ضروری۔ تو اگر اعتکاف واجب مکمل نہ کرے گا تو جو منت مانگے گناہ گار ہوگا۔ تو اعتکاف واجب کی کم سے کم جو ہے وقت ہے 1 دن پورا ہے، اور روزہ اس کے لیے شرط ہے اعتکاف واجب کے لیے۔ تو آتے ہیں شرائط وغیرہ کے لیے۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا ضروری ہے۔ دوسرا جنابت سے پاک ہو، اور عورت حیض و نفاس سے پاک ہو، تو یہ شرطیں ہیں۔ اور بلوغت کا ہونا شرط نہیں، ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ تمیز رکھتا ہو، اٹھنے بیٹھنے کی، کوئی چھوٹا ہو اگر بالغ نہ ہو تو لیکن اس کو تمیز ہو اٹھنے کی، بیٹھنے کی، پڑھنے کی، نماز وغیرہ کی، کچھ تھوڑے بہت مسائل آتے ہوں دین اسلام کے، تو یہ شرائط ہیں۔ عورت کے لیے، مرد کے لیے مسجد میں ضروری ہے اعتکاف بیٹھنا، اور اس کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، اور عورت کے لیے گھر میں ضروری ہے اعتکاف میں بیٹھنا۔ عورت مسجد میں اگر بیٹھے گی تو اس کے لیے مکروہ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر جانے کی وجوہات کہ اعتکاف میں مسجد میں سے ہم باہر جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اعتکاف کی لازمی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جائے
और फिर मस्जिद भी वो होनी चाहिए जिसमें 5 वक्त की नमाज अदा की जाती हो, जिसमें और नमाजें हाँ ये है नमाज जुमा ना भी होता हो तो उस मस्जिद में एतकाफ़ हो जाएगा, किसी दूसरी मस्जिद में भी जुमा पढ़ा जा सकता है। बेहतर है किसी जामिया मस्जिद में एतकाफ़ किया जाए, लेकिन जिसमें 5 वक्त की जमात होती है ये ख्याल करना है। तो दूसरा जो है दौरान एतकाफ़ मुतकफ़ा मस्जिद में जाना, मस्जिद की हदूद का जानना ज़रूरी है कि कौन सी हदूद है मस्जिद की, कौन सी जो है हदूद आती है मस्जिद के अंदर और कौन सी नहीं आती है। ये पहले इंतज़ामिया से मालूम कर लेना चाहिए, या इमाम साहब होते हैं उनसे पूछ लेना चाहिए कि कौन सी हदूदें मस्जिद के अंदर आती हैं। तो आमतौर हमें नहीं पता, हम अक्सर लोग एतकाफ़ पे बैठ जाते हैं लेकिन वो बातें करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, मस्जिद की हदूद बनी होती है उसके बाहर खड़े हो जाते हैं, तो ये भी मालूम कर लेना चाहिए। मोतकब हजरात इन उमूर के लिए मस्जिद से निकल सकते हैं, यानी कुछ काम है जिनके लिए नहीं निकल सकते हैं और जिनके लिए मस्जिद से निकल सकते हैं। पहले सुन लें कि जिनके लिए जो है एतकाफ़ बैठा है मस्जिद से निकल सकते हैं। तो एतकाफ़ के वाजिब में मोतकफ को मस्जिद से बगैर उज़र के निकलना हराम है। अगर भूल कर भी निकल गया तब भी एतकाफ़ उसका टूट जाएगा। तो और यूँ ही एतकाफ़ सुन्नत भी बगैर उज़र से निकलने से जाता रहता है। यूँ ही औरत ने मस्जिद बैत यानी घर में औरत मखसूस करती है ना अपने लिए जगह एतकाफ़ बैठने के लिए, अगर औरत भी बिला उज़र के अपनी जगह से उठेगी या घर के काम वगैरह करेगी तो उसका भी एतकाफ़ टूट जाएगा। हाँ मसनून में जो होता है एतकाफ़ उसमें बगैर उज़र के कोई हो तो कोई वजह नहीं है। तो दूसरा मुतकब मस्जिद से निकलने के लिए 2 उज़र होते हैं। एतकाफ़ होता है ना एतकाफ़ वाला, उसके लिए 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह तबई, यानी वजह तबई वो होती है यानी जो चीज़ मस्जिद में पूरी ना हो सके, यानी पखाना वगैरह, पेशाब वगैरह, संजा वगैरह, वुज़ू और गुस्ल करना अगर मस्जिद में सहूलत ना हो तब भी बाहर जाने की इस्लाम ने इजाज़त रखी है। और दूसरी हाजत शरई, मसलन मर्द को ईद या जुमा के लिए जाना, और अगर मर्द ने ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ किया जहाँ जमात नहीं होती तो जमात के लिए निकलने की इजाज़त है, और जुमा पढ़ने के लिए एक मस्जिद से दूसरे मस्जिद में जाना इसकी इजाज़त है। मोतकफ क़ज़ाए हाजत को गया तो तहारत करके फ़ौरन वापस चला जाए। दूसरा, अब ठहरने की इजाज़त नहीं है उसको, बल्कि अगर किसी के 2 मकान हैं, एक नज़दीक और दूसरा दूर, तो नज़दीक वाले मकान में जाए कि यानी मस्जिद के नज़दीक वाले मकान में हाजत के लिए जाना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। तो दूसरा सवाल ये, क्या मोतकफ को भूल कर खाने या गाली गलोच करने वाले का एतकाफ़ टूट जाता है? तो इसके मुतालिक ये है कि बिला वजह खाने की वजह से एतकाफ़ फासिद नहीं होता, और गाली गलोच करने से एतकाफ़ टूटता तो नहीं, हाँ अलबत्ता फासिद उसकी बरकत जो है उठ जाती है, उसका नूर उठ जाता है। अगर जो गाली गलोच वगैरह हमारे तो एतकाफ़ में ये करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जुगते लगाते रहते हैं एक दूसरे को, इससे एतकाफ़ की बरकत चली जाती है, इससे एतकाफ़ बेनूर हो जाता है। एतकाफ़ में जितना भी खुशू व खुजू किया जाए, अल्लाह ताला की दिल लगा कर इबादत की जाए, तो ये बहुत कम है। तो मोतकफ के लिए तो दूसरा आम मसला है कि मस्जिदों के अंदर जो है बिला वजह नहाना, बिला वजह बगैर शरई उज़र के, यानी एहतलाम वगैरह ना हो, अगर गुस्ल वाजिब ना हो, और आजकल तो उलमा ने ये इजाज़त दी है गर्मी की वजह से स्मेल वगैरह आती रहती है तो उससे बचने के लिए नहा सकते हैं, लेकिन बिला वजह तो अपने सुकून के लिए बिला वजह नहाते रहना ये जायज़ नहीं है। एतकाफ़ में एतकाफ़ की लाजमी शराइत में से एक शर्त का ये है कि एतकाफ़ मस्जिद में किया जाए। दूसरी शर्त ये है कि मुसलमान भी हो, क्योंकि मुसलमानों की इबादत है ना, तो मस्जिद वो हो जहाँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती हो, 5 वक्त की जमात होती हो। दूसरा बेहतर ये है कि किसी जामिया मस्जिद में एतकाफ़ किया जाए। तो दूसरी शर्त ये है कि आपने अगर मस्जिद में एतकाफ़ बैठना है, पहले आपने ये जान लेना है कि इमाम मस्जिद से या इंतज़ामिया से मस्जिद की हदूद क्या है। आम लोग जब बैठते हैं एतकाफ़ के अंदर उनको पता नहीं होता सेन की हदूद क्या है और मस्जिद की जो है हदूद क्या है, बाहर वाली साइड क्या है, अंदर वाली साइड क्या है, ये भी पहले जान लेनी चाहिए। और कुछ जब आपने ये चीज़ें जान ली, आप एतकाफ़ बैठ गए, तो फिर आगे बताते हैं किन कामों के लिए हम मस्जिद की हदूद से बाहर जा सकते हैं और किन के लिए नहीं जा सकते हैं। तो वो उमूर है रफ़ा हाजत, यानी इस्तिंजा वगैरह करना हो, आपने पेशाब वगैरह के लिए जाना हो, मस्जिद में उसकी सहूलत ना हो,
तो जा सकते हैं हालत मजबूरी में। तो दूसरा, वज़ू करने के लिए जा सकते हैं, गुस्ल करने के लिए जा सकते हैं, शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। हालत मजबूरी खाना भी घर से ला सकते हैं। इसके अलावा अगर मस्जिद में जामिया मस्जिद नहीं है, वहाँ जुमा नहीं होता, तो नमाज जुमा के लिए जा सकते हैं। तो वो उमूर जिनके लिए मस्जिद से बाहर जाना जायज़ नहीं, और वो उमूर जिनके लिए मस्जिद से बाहर जाना दुरुस्त है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि एतकाफ़ करने वाले के लिए एतकाफ़ के मामले में सुन्नत ये है कि वो ना मरीज़ की इयादत करे ना जनाजे में जाए। हाँ, ये मसला है आजकल उलमा कराम ने जो फ़िक़्ह के अंदर बताया कि अगर पहले नियत कर ली जाए कि मैंने फ़लाँ मरीज़ की इयादत भी करनी है या फ़लाँ जनाजे में शिरकत करनी है, तो ये जायज़ है। तो औरत दूसरी ये है कि किसी औरत को हाथ ना लगाए, किसी जिस्म के साथ जिस्म मस ना करे, किसी हाजत के लिए मस्जिद से निकले बजाय से हाजत के जिसके लिए मस्जिद से निकलने के सिवा चारा ना हो, यानी बहुत मजबूरी हो फिर बाहर निकल सकते हैं। मस्जिद और रोज़े के बगैर कोई एतकाफ़ नहीं है। मस्जिद भी ना हो मर्द के लिए और रोज़ा भी ना हो तो आपका एतकाफ़ नहीं होगा। वाजिब का मैंने पहले बता दिया है कि वाजिब जो होता है एतकाफ़, जो किसी ने मन्नत मांगी हो तो तब एतकाफ़ बैठते हैं, तो वो होता है कम से कम 1 दिन का, और उसके लिए रोज़ा रखना शर्त है। और नफली रोज़ा तो नफली एतकाफ़ तो जब चाहें आप बैठ सकते हैं। अगला मसला सुनिए, मस्जिद से बाहर जाने का एक जवाज़ रफ़ा हाजत है। अगर मस्जिद के साथ कोई रफ़ा हाजत की जगह हो तो वहाँ तक जा सकता है। बाज़ मसाजिद के बाहर लैट्रीनें वगैरह बनी होती है, तो मोतकफ़ को वहाँ तक जाने की इजाज़त है। किसी से आम लोगों से बातों वगैरह से वहाँ परहेज़ करना चाहिए। आगे मसला नहाने का है। आजकल ये आम है, एतकाफ़ के अंदर बैठते हैं तो बिला ज़रूरत के नहाते रहते हैं। तो इसके लिए आज हो के उलमाए कराम ने जो इजाज़त देती है, गर्मी की वजह से नहाया जा सकता है, यानी स्मेल वगैरह ना आती हो उससे बचने के लिए, क्योंकि मस्जिद के अंदर स्मेल वगैरह बदन से आना मकरूह है, ये चीज़ें ना हो। तो इसके लिए दूसरा नहाया जा सकता है, गुस्ल वाजिब हो जाए तो एहतलाम वगैरह हो जाए तो तब नहाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बेहतर ये कि एतकाफ़ जामा मस्जिद में किया जाए जहाँ नमाज जुमा हो, ताकि नमाज जुमा के लिए बेहतर तो जायज़ है। मगर याद रहे कि एहतलाम होने से इख्तिलाफ़ में कोई फ़र्क नहीं है, एतकाफ़ में कोई फ़र्क नहीं आता। याद रखना है, एहतलाम होने की सूरत में आपके एतकाफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुस्ल वाजिब हो जाता है, वो गुस्ल आपने करना है। तो दूसरा ये है, पहले ये कर लेना है, जब गुस्ल आपने करना है तो बेहतर ये है कि आपने कोई दूसरा साथी हो नीचे कपड़ा बिछाए, कपड़े के ऊपर चलकर वो जो है गुस्ल खाना वगैरह उस पे जाए। दूसरी हालत ये है कि तयम्मुम कर ले वहीं से। अगर तयम्मुम ना हो, फिर कोई भी मजबूरी हो, फिर कोई साथी आपको उठाए, मस्जिद से उठाकर फिर बाहर वाली साइड से आपको गुस्ल खाने में छोड़ दें। तो ये थे गुस्ल करने का तरीका बहालत एतकाफ़। तो दूसरा मसला ये एतकाफ़ की तीसरी किस्म नफली एतकाफ़ है। इस किस्म के एतकाफ़ के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं, जब चाहे आप कर सकते हैं। मस्जिद में जाएँ, नवैतु सुन्नतुल एतकाफ़, सुन्नत की आपने एतकाफ़ की नीयत कर लें, आपका एतकाफ़ हो जाएगा। तीसरा मसला है ख़वातीन का। ख़वातीन का एतकाफ़ अपने घरों में करना चाहिए। घरों में उमूमन जिस जगह नमाज अदा की जाती हो वहाँ औरतें करें, जहाँ नमाज पढ़ती हो वहाँ। बेहतर यह है कि कुछ चबूतरा वगैरह पहले से ही छोड़ा गया हो, जहाँ नमाज वगैरह भी पढ़े, वहाँ एतकाफ़ हो। अगर कोई मुकर्रर जगह नहीं है तो घर में किसी एक जगह को मुकर्रर करें, वहाँ पर भी एतकाफ़ बैठ सकती हैं। मस्जिद में औरत के लिए एतकाफ़ करना जायज़ नहीं है। ख़वातीन के लिए भी यही हुक्म है। 20वें रोज़े की शाम को एतकाफ़ किया जाए, यानी जो शाम का जो है अगला दिन जो होता है, अगले रोज़े का जो है शाम होती है, मगरिब होने से पहले मर्दों का मस्जिद में आ जाना चाहिए, औरत का मगरिब से पहले एतकाफ़ बैठ जाना चाहिए। मगरिब की नमाज जो है उलमा कराम फरमाते हैं एतकाफ़ के दौरान ही पढ़नी चाहिए। तो ये थे एतकाफ़ के कुछ मसाइल। तो आपने जब उठना कब है, एतकाफ़ होता है 20वें रोज़े यानी 21 की शब से लेकर शव्वाल मुकर्रम की पहली शब, यानी शव्वाल का जब चाँद नज़र आ जाता है, ईद का चाँद नज़र आता है, तब तक एतकाफ़ होता है। इससे पहले नहीं उठना चाहिए। इससे पहले जो शराइत बताई हैं, अगर इनमें से एक भी शराइत ना पाई गई तो आप बिला शरई उज़्र के बाहर निकलेंगे तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। तो ये थे कुछ मसाइल। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगर और बेल को भी लाजमी दबाया करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।